Yes, hello students. So let's start our today's class. In previous class, we have discussed about the measurement of length, and we have discussed four instruments which are used to measure the length. Those instruments are your meter rule, your vernier caliper, your screw gauge, and the last instrument that we have done that was your measuring tape, which is also called your inch tape measure. So these were the four instruments that we have studied in previous class. In today's class we will be studying about the measurement of mass. ठीक है, in today's class हम discuss करेंगे that how can we measure the mass of any particular object. Okay, before measurement of mass you should know what mass is. What is mass? Anything that has the quantity of matter contained in a body is called its mass. ठीक है, so basically what is mass? Mass is a quantity of matter that is contained in a body, and I think you know what matter is. Anything that has some mass and that has some weight and that can occupy some space, that is called your matter. So mass is basically the quantity of matter contained in a body. You must have seen everything that is present all around us has some sort of mass, whether that is in solid state, that is in liquid state, or in gaseous state. Whatever state we have, all these three states have certain mass. Some objects have lesser mass, some objects have greater mass. It depends upon the quantity of matter that they contain. It depends upon the quantity of matter that they contain. If an object is having less matter, if a body is having less matter, तो उसका जो mass होगा, that mass will also be less. But if a body is containing more matter, so its mass will be more. उसका जो mass है आपका फिर ज़्यादा होगा. इसकी आप एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं कि लेट्स सपोज कि अगर आप एक चौक ले लें. इफ़ यू टेक अ चौक, तो चौक जो आपको होता है दैट इज़ वेरी लाइट वेट, तो उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर आपकी होती है वो बहुत कम आपका उसमें हो रहा होता है. लेकिन अगर जो है वो आप एक जो है वो लेट्स सपोज कि आप एक पूरा ट्री ले लें या फिर आप जो है वो एक ह्यूमन बीइंग ले लें, तो ह्यूमन बीइंग में जो है आपका जो मास होता है वो आपका ज़्यादा होता है उसका, बिकॉज इट कंटेन्स मोर मैटर इन इट. उसके अंदर जो मैटर होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर जो होती है उसके अंदर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉडी होती है उसके अंदर जो मास होता है वो मास आपका ज़्यादा होता है. यूजली जो यूनिट है ये मास इज़ वन ऑफ द बेसिक क्वांटिटी. क्या मास इज़ वन ऑफ द बेस क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम. ठीक है, तो आपका जो मास है वो बेसिक क्वांटिटी है. आई टोल्ड यू देयर आर टोटल 7 बेसिक क्वांटिटीज. सो आउट ऑफ दो 7 बेसिक क्वांटिटीज, one of the quantity which is your mass, so that mass is also a basic quantity. Usually जो मास को मेजर करते हैं we measure mass in kilograms. और इसके अलावा we have other units of measurement of measuring mass as well. Mass can also be measured in milligrams. ठीक है, mass can also be measured in milligrams. It can also be measured in tons. ठीक है, इसको जो मास को हम जो वो टन्स में भी मेजर कर सकते हैं. वी कैन मेजर मास इन ग्राम्स. तो यूजली जो है वो मास के आपके जो बहुत सारे डिफरेंट आपके यूनिट्स हैं. वी कैन इवन मेजर मास इन पाउंड्स एज वेल. वी कैन मेजर मास इन आउंसेस. ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट यूनिट्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ टू मेजर द मास. अच्छा, इसमें जो पाउंड्स होते हैं, पाउंड का जो सिंबल है दैट सिंबल इज LB. ठीक है, तो स्मॉल LB, दिस इज द सिंबल ऑफ पाउंड्स. तो यूजुअली आप अगर कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो उसके ऊपर जो है वो ये लिखा होता है कि उसका जो मास है वो दिस मच LB है. तो ये उसके अंदर दिस मच LB उसका मास लिखा हुआ है, दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग इट्स मास इन टर्म ऑफ पाउंड्स. यूजुअली जो मास है वो आपका ग्राम्स में और किलोग्राम में भी लिखा होता है, लेकिन अलॉन्ग साइड विद ग्राम एंड किलोग्राम द मास इज ऑल्सो मेजर्ड इन पाउंड्स एज वेल. तो और पाउंड का आपको जो सिंबल है दैट सिंबल इज LB. सिमिलरली आपके जो आउंसेस होते हैं, आउंसेस भी जो है वो आपको थोड़ा स्मॉल यूनिट है, बट ऑल दीज यूनिट्स आर यूज टू मेजर द मास. ये सारे यूनिट जो है हम उनको यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट द मास. अच्छा, इसके अलावा जो हमने प्रीफिक्सेस पढ़े थे, वी कैन यूज एनी ऑफ द प्रीफिक्स विद ग्राम.
हम जो है वो ग्राम के साथ जो है वो कोई भी जो है प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे दी मिलीग्राम, इसमें जो मिली आपका यूज़ हो रहा है, दिस मिली इज बेसिकली अ प्रीफिक्स। सिमिलरली आपने जब यूज़ किया किलोग्राम, तो किलोग्राम में जो आपको जो किलो यूज़ हो रहा है दैट किलो इज बेसिकली अ प्रीफिक्स। तो यूजुअली वी कैन यूज़ प्रीफिक्सेस विद ग्राम to represent our smaller or greater masses. Similarly, we can even use these prefixes with pounds as well. You can use millipound or kilopound or megapound. So you can use those prefixes with any one of these units. Okay, now let's move on to the topic that was measurement of mass. For the measurement of mass, the instrument that we use, that is called your beam balance, or it is also called your physical balance as well. ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास, जो कि हम लैब में यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे जो डिफरेंट आपकी जो शॉप्स वगैरह होती हैं, जो आपके डिफरेंट जो वो सब्जी वगैरह बेचने वाले होते हैं, ऑल दोज आर हैविंग अ बैलेंस, और उनके पास जो बैलेंस है दैट इज़ कॉल्ड द बीम बैलेंस। और लैब में जो हम यूज़ करते हैं बैलेंस, दैट इज़ कॉल्ड योर फिजिकल बैलेंस। और ये जो फिजिकल बैलेंस होता है दैट इज़ बेसिकली ए टाइप ऑफ अ बीम बैलेंस। ये जो आपका टाइप ऑफ बीम बैलेंस है। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो यूज़ अ डिजिटल बैलेंस एज वेल। यूजुअली आजकल अगर आप किसी भी मार्केट में जाते हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द बीम बैलेंस दे यूज़ डिजिटल बैलेंस। आजकल जो है वो आपके डिजिटल बैलेंस यूज़ कर रहे हैं। उस डिजिटल बैलेंस में बेसिकली होता यही है आपका कि वो इस पर एक प्लेटफॉर्म होता है। व्हेन एवर यू प्लेस एनी ऑब्जेक्ट ऑन दैट प्लेटफॉर्म, तो जितना भी आप उसके अंदर मास आप प्लेस करते हैं उस ऑब्जेक्ट के उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो उस चीज़ को मेजरमेंट करके तो आपके सामने एक स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर आपको शो कर देता है कि इस ऑब्जेक्ट का जो है वो मास कितना है। तो डिजिटल बैलेंस जो है नॉर्मली वो आजकल जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं आपके बीम बैलेंसेस को। लेकिन पुराने ज़माने में आपको जो बैलेंसेस यूज होते थे, दोज बैलेंसेस वर योर बीम बैलेंस। वो आपको जो है बीम बैलेंस आपके होते थे। यू मस्ट हैव सीन दीज बीम बैलेंसेस एज वेल। बीम बैलेंस जो आपके होते हैं उसके अंदर बेसिकली वी हैव अ हॉरिजॉन्टल बीम। हमारा जो एक हॉरिजॉन्टल बीम होता है, और इस हॉरिजॉन्टल बीम के दोनों तरफ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बीम के दोनों तरफ वी हैव टू पैन्स। हमारे पास दो पैन होते हैं, और इस बीम को जो है बिल्कुल सेंटर पे जो है वी बैलेंस दैट बीम राइट एट द सेंटर। यूजुअली अगर आपके दोनों पेन्स हैं, बोथ द पेन्स आर एम्प्टी, अगर दोनों पेन जो है आपके बिल्कुल खाली होंगे, एम्प्टी होंगे, तो आपका जो बीम होगा दैट बीम विल बी बैलेंस्ड। आपको जो बीम होगा बिल्कुल टॉप में, वो बीम आपको जो है बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। ओके, दिस इज अ टाइप ऑफ बीम बैलेंस। ये आई थिंक आप सबको नजर आ रहा होगा। दिस इज अ टाइप ऑफ बीम बैलेंस, ठीक है। ये आपके सामने एक डायग्राम मैंने शेयर किया है। ये आपका बीम बैलेंस की आपके एक मतलब के डायग्राम है। इसमें आप देखें टॉप पे बिल्कुल जो है आपका एक हॉरिजॉन्टल आपको एक मतलब के फ्रेम नजर आ रहा होगा, हॉरिजॉन्टल बीम नजर आ रही होगी, दैट इज कॉल्ड योर बीम। ये जो आपका हॉरिजॉन्टल फ्रेम टॉप पे नजर आ रहा है, ये आपका बीम कहलाता है। और उसके बाद फिर यू हैव टू डिफरेंट पेन्स हियर। लेफ्ट साइड पे आप देखें और राइट साइड पे देखें तो आपके पास दो जो है वो प्लेट्स टाइप चीज़ आपकी जो है वो सस्पेंड हुई हैं। दीज आर कॉल्ड योर पेन्स। ये आपके जो है पेन्स कहलाते हैं। और बिल्कुल अगर आप इसके सेंटर में देखें, जो आपको जो ब्लैक कलर का आपका एक नॉब लगा हुआ है, इस नॉब के बिल्कुल ऊपर आपका ये वाइट कलर का एक आपका स्केल लगा हुआ है। और इस स्केल के साथ क्या हुआ है, आपकी बिल्कुल एक नीडल है। देयर इज अ नीडल राइट एट द मिडल ऑफ दिस बीम, जो कि आपकी इस स्केल के बिल्कुल सेंटर में जो है वो पॉइंट कर रही है। ये नीडल आपकी जब बिल्कुल सेंटर में पॉइंट कर रही है, इसका मतलब ये होगा कि आपको जो पेन है, दिस पेन इज बैलेंस्ड, यानी आपको जो बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस है, दैट इज टोटली बैलेंस्ड। सो दिस इज बीइंग शोन बाय दिस बीम। ये जो आपकी बीम बिल्कुल वर्टिकली जो है उसके सेंटर में आपकी है, जो कि बिल्कुल सेंटर में इसके स्केल के ऊपर जो वो पॉइंट कर रही है। ये बीम जो आपकी दिस बीम इज द वन जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि आपको जो बैलेंस है वो फिजिकल बैलेंस है, दैट इज टोटली बैलेंस्ड। अच्छा, फिर आपके नीचे इसमें एक नॉब है। ये जो नॉब आपकी होती है, दिस नॉब इज बेसिकली रोटेटेड। ये जो ब्लैक कलर की आपको नॉब नजर आ रही है,
जब आप इस नॉब को रोटेट करते हैं तो आपकी जो पूरा बीम है, दिस बीम इज रेज्ड अप अ स्मॉल अमाउंट, ठीक है। आप जब इस नॉब को रोटेट करते हैं तो आपकी पूरी बीम जो है वो स्मॉल अमाउंट आपकी रेज्ड होती है। अच्छा, अगर आपके दोनों जो पेन्स हैं, अगर ये दोनों पेन आपके बैलेंस नहीं होंगे तो जिस तरफ आपका वेट ज़्यादा होगा दैट पेन इज गोइंग टू मूव डाउनवर्ड्स, ठीक है। जिस पेन में आपका वेट ज़्यादा होगा वो पेन जो आपका वो फिर नीचे डाउनवर्ड उसकी तरफ मूव करेगा। तो यूजुअली बिफोर मेजरिंग एनी मास को मेजर करने से पहले क्या करते हैं, वी हैव टू सी कि वेदर आवर इंस्ट्रूमेंट हैज़ सम एरर इन इट और नॉट। तो वो एरर चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम इस नॉब को रोटेट करते हैं, आपकी जो पूरी नॉब आपका पूरी आपकी जो बीम है दैट बीम राइजेस अप अ स्मॉल अमाउंट, और जब आपके ऊपर राइज करती है तो आपके जो दोनों पेन हैं, दोनों पेन भी आपके थोड़े से ऊपर जाते हैं। देन यू सी कि आपकी जो नीडल है, दिस नीडल शुड बी पॉइंटिंग राइट एट द मिडल। नीडल जो आपकी है वो बिल्कुल मिडल में पॉइंट करनी चाहिए। इफ द नीडल इज पॉइंटिंग राइट एट द मिडल, इट इज नॉट फ्लक्चुएटिंग, इट इज नॉट वाइब्रेटिंग लेफ्ट एंड राइट, so this means that this balance is this physical balance is totally balanced। ये physical balance आपको जो totally balance है, now you can use this balance to do any measurement। अच्छा, फिर क्या करते हैं, you have two pens here, in one of the pen we place the object whose mass we need to measure, in one of the pen we place an object whose mass we need to measure, whereas on the other mass we have some fixed masses। दूसरे जो पेन हमारा होता है, दूसरे पेन में हमारे पास कुछ फिक्स मासेस होते हैं जो कि उसके ऊपर मार्क्ड होते हैं कि इसके ऊपर जो है कि इसका जो आपका मास है वो इतने ग्राम है, इसका मास जो इतने किलोग्राम है। वी प्लेस इट ऑन द अदर पेन, और जब आपके दोनों पेन जो आपके वो बराबर हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि यू कैन ईजिली फाइंड आउट द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो यूजली हम इसमें यही करते हैं, जो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पेन है, उस लेफ्ट हैंड साइड वाले पेन में हम उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं जिसका मास हमने फाइंड करना है। Then on the right hand side pen we will put our weights one by one। पहले आप एक वेट इसमें पुट करते हैं, then you rotate this knob, आपकी जो बीम है वो आपकी बीम ऊपर राइज करती है। then you see कि आपने जो वेट प्लेस किया है वो वेट आपका ज़्यादा है या जो ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है उसका वेट ज़्यादा है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा जो है आपका पेन जो है नीचे की तरफ है। जो पेन आपका नीचे होगा इसका मतलब है उसका वेट आपका ज़्यादा है, तो यू विल पुट वेट इन द वेट पेन। तो फिर उसके बाद आप उसको दोबारा नीचे करेंगे, रोटेटेड मूव द बीम डाउन अगेन। और उसके बाद अगर आपका जो लेट्स सपोज अगर आपको जो मास है, जो आपने मास यहाँ पे पुट किया हुआ है लेफ्ट साइड पेन में, वो मास ज़्यादा था, तो यू विल पुट सम मोर वेट इनटू द राइट हैंड साइड पेन, जो कि आपका इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप बारी वेट डालते रहेंगे इसके अंदर, और बारी वेट डालने के बाद यू विल फाइंड आउट, जब ये दोनों आपके जो है बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है, यू विल रोटेट दिस नॉब, आपकी बीम जो है वो ऊपर जाएगा, और जब दोनों आपके जो पेन्स हैं वो एक दूसरे के साथ बैलेंस हो जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, जितना आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पेन के अंदर, राइट हैंड साइड में जितना भी आपने वेट डाला हुआ है वो सारा वेट उसके बराबर है। तो दैट वेट इज इक्वल टू दैट दैट मास ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अब जो आपने राइट हैंड साइड पे आपने वेट्स डाले हुए हैं, जो राइट हैंड साइड पे आपने वेट्स डाले हुए हैं, ऑल वेट्स हैव सम रीडिंग मार्क्ड ऑन दैट। किसी के ऊपर लिखा होता है 100 ग्राम, किसी के ऊपर लिखा होता है 20 ग्राम, किसी के ऊपर लिखा होता है 10 ग्राम, किसी के ऊपर लिखा होता है 5 ग्राम। तो आप जो है वो इस पूरे पेन जो होता है, इस पेन में आपने जितने वेट डाले होते हैं राइट हैंड साइड पे, आप सब वेट्स को ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे जो है वो एक 50 ग्राम का डाला, एक मैंने 10 ग्राम का डाला और एक मैंने 1 ग्राम का डाला, और मेरा जो फिजिकल बैलेंस है वो मेरा बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जब एक 50 का डाला तो 50 प्लस मैंने एक 10 का डाला तो 50 प्लस 10 दैट इज 60, एक मैंने 1 का डाला तो दैट विल बिकम +1, तो 61 ग्राम होगा, दैट विल बी द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड पेन के अंदर जो है वो इंसर्ट किया हुआ है, ये पुट किया हुआ है। सो दिस इज हाउ वी यूज our physical balance, this is how we use our physical balance to measure the mass of any particular object। तो मास मेजर करने के लिए जो है वो ये वाला बैलेंस जो है वो इस तरीके से यूज करते हैं। Yes, if you have any question you can ask me right now regarding this balance। ओके, आपको जो बेटा जो बीम बैलेंस है, दैट बीम बैलेंस कम्स इन डिफरेंट शेप्स, इट कम्स इन डिफरेंट साइजेस, ठीक है, इसके जो है वो डिफरेंट शेप भी होती है, इसके डिफरेंट साइजेस भी होते हैं, बट ऑल दीज different shapes and all these different sizes, all these are your
फिजिकल बैलेंस, ये सारे सारे आपके जो है वो फिजिकल बैलेंस ही आपके होते हैं। ओके, ये डिफरेंट टाइप के कुछ बैलेंसेज हैं, इनकी मैं डायग्राम आपसे दोबारा शेयर कर रहा हूँ, तो इसको भी आप ज़रा प्लीज़ ज़रा गौर से देख लें। Okay, can you see the diagram? No, sir. No, sir. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is basically बैलेंस जो कि मैंने भी आपको दिखाया है। इसके अलावा दिस इज ऑल्सो योर बैलेंस, ठीक है, ये भी आपको जो फिजिकल बैलेंस है, यू मस्ट हैव सीन दिस टाइप ऑफ बैलेंसेज एज वेल। तो ये भी आपको जो है दिस इज सिंगल पैन बैलेंस, लेकिन जो है ये वही काम कर रहा था, इट इज़ ऑल्सो मेजरिंग द मास एज वेल। तो ये भी आपको जो है वो मास ही मेजर कर रहा था, बट लेकिन इसके अंदर आपके जो सिंगल पैन होते हैं और बाकी जो आपके वेट्स होते हैं वो वेट्स आपके ऊपर जो आपका स्केल नजर आ रहा है आपको बिल्कुल टॉप के ऊपर, इस स्केल के अंदर जब हम उसके वेट्स जो है वो पुट करते हैं एंड वी ट्राई टू बैलेंस इट, और वो जब आपका ये बैलेंस हो जाता है और आपका जो भी आपका ये बीम है वो बिल्कुल वर्टिकल होता है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, तो हम फाइंड आउट कर रहे थे कि इसका जो मास है वो कितना है, इसका मास, ठीक है। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ बैलेंस, ठीक है, ये भी आपका टाइप ऑफ बैलेंस है। इसमें भी देखें, इंस्टेड ऑफ बीम बीइंग पुट इन अबव, इट इज बिलो। इसमें जो बीम आपका होता है वो ऊपर के बजाय नीचे होता है पेन के ऊपर, और आपको जो भी पेन होते हैं आप जस्ट पुट द वेट इन द पेन और आप उसी तरीके से जो है मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत ही पुराने ज़माने का यूजली आपका बैलेंस है, जो पुराने ज़माने में आपके इस तरह के बैलेंस आपको यूज़ होते थे, यू कैन इजीली होल्ड इट फ्रॉम द टॉप। ये तो अभी आपका स्टैंड पे पड़ा हुआ है, लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था, ये स्टैंड भी आपको नहीं होता, सिर्फ आपको सेंटर में आपको मतलब इस तरह से आपका एक हैंडल होता था, और उस हैंडल से जो आप इसको लिफ्ट करते थे और एक जगह पे आप जो वो ऑब्जेक्ट रखते थे, इसका आपने वेट करना होता है, और दूसरी जगह पे आप जो भी आपके मतलब फिक्स वेट्स होते थे वो आप डाल देते हैं। यूजली अगर आप किसी भी दुकान पे जाएं चीज़ परचेस करने के लिए, उसके बाद जो फिक्स वेट्स होते हैं, वो जो फिक्स वेट्स होते हैं वो आपके 250 ग्राम के होते हैं, 125 ग्राम के होते हैं, 50 ग्राम के होते हैं, 500 ग्राम्स के होते हैं, देन 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। तो आप किसी की आपकी जो डिफरेंट वेट्स होते हैं, फिक्स वेट्स होते हैं, और वो जो आपके फिक्स वेट्स होते हैं उन फिक्स वेट्स के ज़रिए फिर आप क्या करते हैं, आप जो ईजिली जो है वो मेजरमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है। सो दीज आर टाइप ऑफ बैलेंसेस जो कि हम नॉर्मली जो है वो ऑल दीज आर योर फिजिकल बैलेंस जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास। इन साइज है बैलेंसेस को हम जो है वो यूज़ करके मास किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन बेटा रिगार्डिंग दिस बैलेंस, दीज बैलेंसेस? Sir, जी do बेटा। these balances have a least count or max count? नो, यूजली दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग, ठीक है। आपका ये जो फिजिकल बैलेंस होता है ये आपका बैलेंसिंग के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा था, यानी कि बोथ दीज पेन्स विच आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड
both these pens have to be balanced, so they do not have any maximum count or maybe any least count. Maximum count usually they do have, जैसे कि ये सब अभी आपके सामने जो एक मतलब बैलेंस लगा हुआ है, अगर मैं if I want to measure the mass of an elephant, तो I cannot use this balance to measure the mass of an elephant. तो यूजुअली आपके जो बैलेंसेज होते हैं दे कम्स इन डिफरेंट साइजेस. तो यूजुअली आपको जो स्मॉलर साइजेस के आपके बैलेंसेज होते हैं दे डू हैव अ मैक्सिमम काउंट के वो इतना मैक्सिमम जो है वो मेजरमेंट कर सकते हैं. और जैसे जैसे आपका जो है बैलेंसेस का साइज आपका बड़ा होता रहता है तो आप उस तरीके से जो उसकी मेजरमेंट जो आप बढ़ाते रहते हैं इस तरीके से. ठीक है, तो ये जो आपका बैलेंस अभी आपको सामने नज़र आ रहा है, दिस बैलेंस हैज़ मोर रेंज. इसका जो मैक्स काउंट है वो आपको ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस बैलेंस. ठीक है, तो यूजुअली दे डू हैव अ मैक्स काउंट और यू कैन से क्या उनका मिनिमम काउंट भी होता है, बट दैट डिपेंड अपॉन बैलेंस टू बैलेंस. वो आपका डिपेंड होता है कि वो कितना जो है वो एक्यूरेटली जो है मेजरमेंट कर सकता है. यूजुअली अगर आप किसी गोल्ड स्मिथ के पास गए हो तो गोल्ड स्मिथ के पास यूजुअली जो है ये वाला जो बैलेंस अभी आपको सामने नज़र आ रहा है, ये वाला बैलेंस जो है वो गोल्ड स्मिथ के पास पड़ा हुआ होता है. और इसके ज़रिए फिर क्या कर रहा था, ही इज़ मेजरिंग सम वेट. तो यूजुअली वो ये वाला बैलेंस आपको जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है. तो इस बैलेंस से हम जो है वो यूजुअली वेट मेजर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का. ओके, बिफोर आई कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, मैं चाह रहा हूँ बेटा कि ऑल ऑफ यू शुड टाइप योर नेम इन द चैट बॉक्स. ये जो आपका चैट बॉक्स है इसमें आप सबके सब जो है अपना नाम लिख दें, सो दैट आई कैन टेक योर अटेंडेंस कि कौन कौन जो है वो बच्चा क्लास में प्रेजेंट था, कौन कौन एब्सेंट था. सर ऊपर वाला मास वाला एक दफा दोबारा से बता देंगे सर. विच मास? बेटा व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, कौन सा मास? सर इस स्केल की मैक्स काउंट और लीस्ट काउंट क्या होती है? बेटा हर स्केल की मैक्स काउंट और लीस्ट काउंट डिफरेंट होती है. इट डिपेंड अपॉन कि उसका जो बीम है वो कितना वेट जो है वो यू कैन से कि कितना वेट जो है वो बर्दाश्त कर सकता है. ठीक है, और जो आपका है वो अपना कितना वेट बर्दाश्त कर सकते हैं वो उसका जो है वो मैक्स और लीस्ट काउंट आपकी होती है इसमें. ओके, सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो ओके नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिकली योर डिजिटल बैलेंस. ओके, ये जो बैलेंस बेटा अभी हमने किया था दैट इज बेसिकली कॉल्ड योर एनालॉग बैलेंस. ठीक है, जो मैंने अभी आपको सारे बैलेंसेस दिखाए हैं, ऑल दीज बैलेंसेस आर कॉल्ड योर एनालॉग बैलेंस. अच्छा, एनालॉग बैलेंस होते हैं दे हैव देयर ओन एडवांटेजेस, दे हैव देयर ओन डिसएडवांटेजेस. व्हाट आर देयर एडवांटेजेस? एडवांटेजेस का ये है कि इट इज़ एक्यूरेट देन डिजिटल बैलेंस. ठीक है, आपका जो एनालॉग बैलेंस होता है वो डिजिटल बैलेंस के मुकाबले में आपका ज़्यादा एक्यूरेट होता है. दूसरा, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट नहीं होता. ठीक है, कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट नहीं होता, जिसकी वजह से जिसमें जो एरर के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं. तीसरा इसका एडवांटेज ये है कि यूजुअली आपको जो एनालॉग बैलेंस होता है दैट इज़ मैकेनिकल. ठीक है, ये आपका मैकेनिकल बैलेंस होता है और इसके जो भी मैकेनिक्स होती है उसमें यूजुअली आपको कोई फॉल्ट नहीं होता. तो यूजुअली आपको जो एडवांटेजेस है एनालॉग बैलेंस के, आपको वो ये बैलेंस एडवांटेजेस हैं कि आपका मोर एक्यूरेट है डिजिटल बैलेंस से. इट डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिकल पार्ट. जब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट नहीं है तो इट वोंट बी नीडिंग एनी बैटरी, इट वोंट बी नीडिंग एनी पावर सप्लाई टू पावर इट अप. तो यूजुअली आपको जो एनालॉग बैलेंस होता है यू कैन यूज इट इवन इफ यू हैव इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट और इफ यू डोंट हैव एनी इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट, तो ये आपको जो वो इक्वली वर्क करेगा. दूसरी आपको जो एनालॉग बैलेंस होता है दिस इज बेसिकली टोटली मैकेनिकल. इसके अंदर जो है वो आपका मैकेनिकल मतलब कि आपके जो है वो बीम्स होते हैं और आपकी पेन्स वगैरह सब चीज़ें आपकी जो मैकेनिकल होती है डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिकल पार्ट. तो ये आपका जो बैलेंस है ये इसके जो है वो एडवांटेजेस है. उसके फिर डिसएडवांटेजेस के
इसका डिसएडवांटेज आपका एक तो ये है कि इट टेक मोर टाइम टू टेक द रीडिंग। ठीक है, यानी इन अदर वर्ड यू कैन से दैट द यूज ऑफ एनालॉग बैलेंस इज टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, डिजिटल बैलेंस में आप क्या करते हैं, डिजिटल बैलेंस में आपने सिंपली एक चीज़ रखी, वो आपको मेजरमेंट करके बताता है कि भाई इसका कितना वेट है। लेकिन एनालॉग बैलेंस में मैंने जैसे भी आपको बताया कि व्हाट यू आर डूइंग, कि आपने एक चीज़ तो रख दी, आपने लेफ्ट हैंड पैन में आपने वो चीज़ रख दी इसका आपने मास मालूम करना, इसका आपने ऑब्जेक्ट जिसका आपने वेट फाइंड करना है। और जो राइट हैंड साइड वाला पैन है उसमें आप क्या करें, यू आर पुटिंग वेट्स वन बाय वन, आप वन बाय वन वेट पुट कर रहे हैं। पहले आपने एक वेट डाला, उसको उठा के देखा वो बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, उसको दोबारा नीचे आपने बिठा दिया, दोबारा से दूसरा वेट डाल दिया, फिर देखा बैलेंस हुआ नहीं हुआ, तीसरा वेट डाल दिया, नहीं बैलेंस हुआ, चौथा वेट डाल दिया। इस तरीके से क्या होगा कि अगर इफ़ यू आर यूजिंग एन एनालॉग बैलेंस, तो एनालॉग बैलेंस जो है दैट इज टाइम कंज्यूमिंग, या आपको जब वो टाइम कंज्यूमिंग है तो इट टेक मोर टाइम टू मेजर द मास, तो टाइम जो है वो ज़्यादा लेगा मास मेजर करने के लिए आपका एनालॉग बैलेंस। डिजिटल बैलेंस आपको जो फ़ौरन से विद इन सेकेंड्स जो है वो आपको मास मेजर करके बता देता है। तो दिस इज अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ एन एनालॉग बैलेंस। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसको भी हम जो है जल्दी से ख़त्म करें, वी हैव वेरी स्मॉल, वी डोंट हैव लॉट ऑफ टाइम। दिस इज योर डिजिटल बैलेंस। ठीक है, अच्छा, डिजिटल बैलेंस जो आपको होते हैं, इट शोज मास इन द फॉर्म ऑफ डिजिट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वी हैव अ सेंसर। ठीक है, हमारे पास जो है वो एक प्रेशर सेंसर लगा हुआ होता है, और वो जो प्रेशर सेंसर होते हैं वो आपका सेंस करता है कि हाउ मच वेट दैट ऑब्जेक्ट हैज़। ठीक है, यानी अगर आप जो है वो किसी जो भी इसका प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म पे अगर आप ज़्यादा मास रखेंगे, तो जब ज़्यादा मास आप रखेंगे तो आपको जो प्रेशर सेंसर है वो ज़्यादा यानी कि प्रेशर सेंस करेगा, और जो भी उस पर रीडिंग आपको नज़र आएगी वो रीडिंग आपको ज़्यादा नज़र आएगी। अगर आप हल्का मास रखेंगे तो जो भी उसका सेंसर है जो कि उस चीज़ को सेंस कर रहा है, प्रेशर सेंसर, वो कम जो है वो मास सेंस करेगा, तो आपको जो भी चीज़ नज़र आएगी आपको कम चीज़ नज़र आएगी। सो दिस इज़ व्हाट डिजिटल बैलेंस इज, के इसके अंदर जो है वो आपका एक प्लेटफॉर्म होते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे आप जिस भी चीज़ का आपने मास मेजर करना था, आप उस चीज़ को उसके ऊपर मास के ऊपर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देते हैं। उसके नीचे आपका एक प्रेशर सेंसर लगा हुआ होता है, जो कि आपको जो होता है दैट इज दिस होल डिजिटल बैलेंस इज बैटरी पावर्ड, या आपका बैटरी पावर्ड होता है। इसके अंदर या तो आप सेल डालते हैं, बैटरी डालते हैं, या फिर आप जो है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो आपकी होती है आप इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, ताकि आपका जो भी इसके इंटरनल जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं वो सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आपको जो है वो पावर अप हो सकें। तो यूजली इसका जो एडवांटेज है वो बिल्कुल अपोजिट है एज कम्पेयर टू द डिसएडवांटेज ऑफ एनालॉग बैलेंस। एनालॉग बैलेंस जो होता है उसका डिसएडवांटेज क्या था कि इट टेक लॉन्गर टाइम टू मेजर द रीडिंग। डिजिटल बैलेंस का क्या एडवांटेज ये हो जाएगा कि इट टेक्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम टू मेजर द मास ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। डिसएडवांटेज इसके क्या हो जाएंगे, डिजिटल बैलेंस का डिसएडवांटेज ये होती है कि इट नीड्स अ बैटरी टू पावर इट अप। ठीक है, डिजिटल बैलेंस जो आपका होता है इसको बैटरी चाहिए होती है ताकि ये पावर अप हो सके। अगर बैटरी नहीं होगी, लाइट नहीं है आपकी, तो यू कैन नॉट बी यूजिंग, यू विल नॉट बी एबल टू यूज अ डिजिटल बैलेंस। दूसरी चीज़ इसकी है कि आपको जो डिजिटल बैलेंस होता है इसके अंदर जो एरर्स होते हैं उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ जो है आपने इस तरीके से नोट की होगी कि अगर आप नोट किया होगा कि अगर आप टीवी का रिमोट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर आप जो बैटरी आपने डाली है, जो आपने सेल डाले हैं, अगर आपके सेल जो है वो मतलब कि नए सेल हैं, तो आपको जो रिमोट है वो बहुत आसानी से बहुत दूर से काम करेगा, इट विल वर्क वेरी एक्यूरेटली। लेकिन जब आपका विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके जो रिमोट्स होते हैं, जो सेल होते हैं, वो सेल आपके वीक हो जाते हैं। तो जब सेल आपके वीक हो जाए तो आपको जो रिमोट होता है वो फिर इतना ईजिली जो वो इतना मतलब कि फ्रीक्वेंटली जो वर्क नहीं करता। यू हैव टू मूव वेरी नियर टू योर टेलीविजन। तो जब आप टेलीविजन के करीब जाते हो तो उसकी जो है वो रेंज मतलब कि आपकी कम होती है, देन जो आपका जो भी रिमोट है वो काम करता है। तो सिमिलरली द सेम थिंग हैपन विद डिजिटल बैलेंस एज वेल। इस डिजिटल बैलेंस में आप बैटरी डालते हैं, आप सेल डालते हैं, अगर वो सेल और वो बैटरी आपकी अगर डिजिटल बैलेंस में अगर आपकी वीक हो जाती है तो उससे फिर क्या होता है कि इसकी जो भी रीडिंग आती है उस रीडिंग में एरर्स जो होते हैं वो आपकी उसके चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अगर आपकी बैटरी और अगर आपका सेल बिल्कुल परफेक्ट है तो उसमें एरर जो है वो इतना ज़्यादा आपका एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका सेल या बैटरी आपकी वीक हो जाएगी तो एरर जो आने के चांसेस हैं डिजिटल बैलेंस में वो आपके ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट अ डिजिटल बैलेंस इज। इट हैज़ इट्स ऑन एडवांटेजेस, इट हैज़ इट्स ऑन डिसएडवांटेजेस। अभी बेटा मैं आपको इसकी डायग्राम शो कर देता सो दैट यू कैन सी दैट डायग्राम एज वेल।
कि डिजिटल बैलेंस जो आपका वो किस तरह का आपका होता है. सो दिस इज हाउ अ डिजिटल बैलेंस लुक्स लाइक. Okay, so this is how your digital balance looks like. Yes, can you see the diagram, beta? Yes, sir. ओके, आपको जो डिजिटल Yes, बैलेंस है sir. कि आपका इस तरह का आपका डिजिटल बैलेंस होता है. ठीक है, इसमें आपके डिफरेंट डिजिट्स हैं. ये आई थिंक दिस इज नॉट योर रिलेटेड टू यू. आप बस इसमें देखने के देयर इज अ प्लेटफॉर्म ऑन इट्स टॉप. इसके बिल्कुल टॉप पे आपका प्लेटफॉर्म है. इस प्लेटफॉर्म के नीचे आपको जो डिजिटल सेंसर आपके जो है वो प्रेशर सेंसर आपके लगे हुए होते हैं. और उसके अंदर आपको यू कैन सी कि यहाँ पे 4 डिजिट्स आपको नजर आ रहे हैं. ये वो जो 4 डिजिट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, दीज 4 डिजिट्स आर यूटिलाइज टू रिप्रेजेंट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो भी आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्लेस करेंगे. तो ये जो आपका यूजली इस तरह का जो आपका ये जो आपको सामने नजर आ रहा है बैलेंस, या आपने जो है डिफरेंट शॉप्स वगैरह पे देखा होगा. ओके, ये भी आपका एक बैलेंस है, डिजिटल बैलेंस है. दिस डिजिटल बैलेंस इज ऑल्सो यूज टू मेजर द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. अच्छा, इस डिजिटल बैलेंस में अगर आप देखें तो इसके ऊपर आपको इस तरीके से ग्लास का या यू कैन से प्लास्टिक का आपका एक कवर रखा हुआ है. ठीक है, और ये जो डिजिटल बैलेंस आपको सामने भी नजर आ रहा है, यूजली आजकल जो भी आपके मतलब के गोल्ड स्मिथ वगैरह हैं, दे आर यूजिंग दिस डिजिटल बैलेंस टू मेजर द मास ऑफ द गोल्ड दैट दे विल बी सेलिंग और दे विल बी परचेजिंग. तो उसको गोल्ड को परचेज और सेल करने के लिए दे विल बी यूजिंग दिस डिजिटल बैलेंस. तो उसके ऊपर आपका एक जो इस तरीके से यूजली क्या होता है, एक कवर रखा हुआ होता है. और ये कवर का पर्पस ये होता है कि यूजली आप जब इससे बैलेंस इससे कोई भी वेट आप मालूम कर रहे हैं तो ऊपर से जो है वो पंखा चल रहा है, तो पंखा जो होता है उसकी हवा चल रही है, हवा आ रही होती है. तो जो पंखे की हवा होती है वो अगर हवा जो है वो इसको पुश करेगी इसके प्लेटफॉर्म को नीचे की तरफ, तो उसका जो प्रेशर होगा दैट प्रेशर विल ऑल्सो बी सेंस्ड बाय दिस बैलेंस. और वो जो क्या करेगा, वो बैलेंस फिर आपका जो है वो एयर का जो प्रेशर लग रहा है ऊपर से पंखा लग रहा है चल रहा है, उसका भी जो है ना वो वेट बढ़ा के जो आपको शो करेगा. यानी आपको जो गोल्ड आप जिसकी आप इसका मास मेजर करने चाहेंगे, उस गोल्ड का मास एक्चुअली कम होगा, लेकिन पंखा ऊपर चले तो पंखा चलने से क्या होगा, आपको मास उसका जो है वो ज़्यादा जो है वो मतलब कि दिखाई देगा. तो यूजुअली जो भी आपका डिजिटल बैलेंस आप जब भी मतलब कि यूज़ करते हैं जिसमें कि आपने किसी एक्सपेंसिव मेटल का, किसी एक्सपेंसिव चीज़ का जो आपने मतलब कि मास मालूम करना होता है, तो उसको आप मास फाइंड आउट करने के लिए उसके ऊपर सीधे आप एक कवर मतलब कि रख देते हैं प्लास्टिक का, ताकि जो बाहर से आपकी जो एयर आ रही है वो एयर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो प्रेशर ना लगाए और वो प्लेटफॉर्म आपका जो है वो नीचे की तरफ जो आपका वो पुश ना हो. ठीक है, तो दिस इज द वे ऑफ मेजरिंग अ डिजिटल बैलेंस. तो ये भी जो आपका एक डिफरेंट टाइप का आपका डिजिटल बैलेंस है. ये आपका सिंपल सा डिजिटल बैलेंस है जो कि आपका जिसकी जो है वो यू कैन से इन ग्राम्स. ये जो डिजिटल बैलेंस आपको सामने भी नजर आ रहा है, दिस मेजर अमाउंट इन ग्राम्स. ये ग्राम्स में मेजर कर सकते हैं, नॉट इन किलोग्राम एंड नॉट इन टन वगैरह. ये टन वगैरह में मेजर नहीं कर सकता. तो अगर आपका जो वेट है वो विद इन 500 ग्राम 600 ग्राम है, तो वो जो आपका मास है दैट मास कैन बी इजीली बी मेजर्ड बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ डिजिटल बैलेंस. और ये जो आपका टाइप ऑफ डिजिटल बैलेंस है, this type of digital balance, this can measure mass up till you can say 10 kg 20 kg or maybe 30 kg. इतना जो मास आपका है, this type of amount can be measured using this digital balance. तो ये आप इस चीज़ जो है उससे फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, so this is your digital balances which we use to measure the mass of any object. So I think I'll be finishing this lecture